Good morning, student. Yesterday, I explained you how we can resolve the force into rectangular components. Okay, so just you have to remember whenever we resolve a force, yeah, the original force can be treated as a resultant of its components. Okay, then I told you about the principle of resolution. Means when we resolve the force, then the algebraic summation of the component of all forces in x direction or in any direction is equal to the component of their resultant in the same direction. Clear? Similarly, with this same principle of resolution, we can write along y-axis also. Okay, clear? Now to find out the procedure of the, or sorry, to find out the resultant of the concurrent force system, the procedure is that the first step is to resolve each force into rectangular component. Resolve the forces. Clear? Second step, clear, take the summation of the component of all forces along x and y direction. Find summation of fx and summation of fy. Clear? Then magnitude of the resultant is given as under root of summation of fx square plus summation of fy square. Yesterday I told you the concept also, how we got this formula. Okay, means when we resolve the force system, here suppose 3 forces are there, we have converted into 6 force system. Then when after calculating this summation of fx and summation of fy, actually this summation of fx is rx and ry, means that equivalent 6 force system we again converted into equivalent 2 force system, and that 2 force system we have converted into a single force system, which is the resultant here, and this is according to the triangle law. Okay, and its inclination is given by alpha equal to tan inverse mod of summation of fy upon summation of fx, because this summation may be positive, may be negative. That's why I take it in the mod, so that alpha will be always positive and less than 90 degree. Then this summation of fx is nothing but rx and summation of fy nothing but ry. These are the component of that resultant. Clear? Summation of fx and summation of fy. Clear? Now from this magnitude and direction, we will get the magnitude and direction. Clear? But we have to again find out resultant act in which quadrant. So that we can decide from the component, direction of the component. Here for finding summation of fx and summation of fy, we are going to use this sign convention. Forces towards right positive, upward positive, left negative, and downward negative. Okay, so according to this, if the summation of fx is positive and summation of fy is also positive, then the resultant will be in the first quadrant. If fx is negative and fy is positive, resultant will be in second quadrant. Here, if both are negative, here resultant will be in the third quadrant. If both are negative, means fx will be towards left, fy will be downward. Here, hence the resultant will be in the third quadrant. Here, if fx is positive and fy is negative, means the resultant will be in the fourth quadrant. In this way, you have to decide in which quadrant the resultant lies. And last point about the point of application of the resultant. In case of a concurrent force system, the resultant always passes through the same point of concurrence where all the forces are meeting, and hence no need to find out the point of application of the resultant separately. It will act to the same point. Clear? So just you have to follow these 4 steps. Clear? I hope all of you are comfortable with these 4 steps. Okay, remember these 4 steps. Whenever there is a concurrent resultant of the concurrent force system sum is there, you have to follow these 4 steps. Clear? And even in case of a resultant of general force system, also the first 4 step is same. Just you have to add 2 more steps in that one. Okay, clear? Now next one, we'll solve the sum number 1 from resultant of concurrent force system. Now here in morning lecture, I am going to solve the sum number 1, sum number 2, then sum number 6, and sum number 8, and sum number 9. Here, if time permits, sum number 10. Here, this much sum we have to solve. Here, so come on. Sum number 1, the figure is given. Draw the given figure as it is. I hope all of you have the notebook and pen. Okay. Now, sum you have to solve. Here, you have to tell me the calculation also. I don't have the calculator. Okay.
Here you have to do the calculations and you have to tell me the answers. Now here what is given? Some altogether 1, 2, 3, 4, 5, 6 forces are given. Okay. Here we have to find out the resultant of that given 6 forces. Clear means we have to find out a single equivalent force for this. Clear. So first draw the given force system. Here while drawing the figure, draw the figure carefully. If you wrongly write any any magnitude of the force or direction of the force, your enter sum will be wrong. Therefore, draw it carefully. This force is acting toward the origin. Here, so it is 125 Newton. Incline at an angle of 30 degree. Here, second force, now its magnitude and direction is given and it is directed toward the point. According to the point of principle of transmissibility, I can extend it away. Here, but no need to do that. Let's keep it this way only. Now, second force is in the second quadrant, magnitude is 150 Newton. And instead of its inclination, listen, to resolve the force, we require magnitude and direction. Then we can resolve the force. Here, but for this 150 Newton, instead of its inclination with horizontal or vertical, the slope of its line of action is given. Here it reads as a 4 in 3. Okay, here the slope is given. From this one, we can calculate this angle or we can calculate its inclination with the x-axis, tan inverse 4 upon 3, right? Yes, so this angle will be tan inverse 4 upon 3. I hope this simple geometry is there. Yeah, how much is the tan inverse 4 upon 3? I hope all of you are comfortable in with the calculator. Yes or no? Hello? Am I audible or not? Yes, sir. Then tell me the answer. Tan inverse 4 by 3. Are you able to calculate that tan inverse 4 upon 3? Yes or no? Yes, sir. Okay. Here, so it is 53.13. यार देखो सबको एक सम नहीं आया तो चलेगा, एक लेसन नहीं आया तो चलेगा, but everybody should know how to operate the calculator. Then third force is acting along x-axis towards left direction. Its magnitude is 50 Newton. Here the next force is in the third quadrant, 125 Newton, inclination with 40 degree with vertical. Next force along negative y direction, 100 Newton. And this 75 Newton force is in the fourth quadrant. And its slope is 1 in 2. It read as a 1 in 2, 4 in 3. So if I say that 1 in 2, its inclination with horizontal will be tan inverse 1 by 2. So how much is the tan inverse 1 by 2? Tell me. How much? Is that correct? Tan Yes, inverse sir. 1, 26.57 is correct? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now next, here now we have to find out the resultant of this given force system. Here, so what are the steps? The first step is resolve each force into two rectangular components. So let's start here and show that resolution here. Here, don't try to write down the summation of fx and summation of fy without resolving the forces. Here, या कुछ भी एक भी कंपोनेंट आपका रॉन्ग हो गया तो पूरा सम रॉन्ग होगा. ये सो डू इट केयरफुली. यार आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस एंड ये देखो 6 फोर्सेस का सम थोड़ा लंबा सम हो गया. यार इतना लंबा सम एग्जाम में नहीं आएगा. Okay, but for the practice it's okay. So let's resolve this 125 Newton force. I'm going to resolve it here. With respect to this point, the force is acting in third quadrant. So x component is left, y will be downward. Here this angle is 30, so this will be 30. Alternate angle. Here, so this is 125 cos 30. The component adjacent to the given angle is cos component and other component is sin component. Here, any difficulty in this resolution? Here, then let's resolve 150 Newton force. Here it is acting in the second quadrant, so x component is left, y will be upward. It makes angle of 53.13 with horizontal. Here corresponding angle. Here, so this component becomes 150 cos 53.13. And this is 150 sin 53.13. And listen, take the sine and cos of angle only. Okay, because this is also number and this is also number. Sometimes student write 30 cos 150.
Okay, clear? So avoid this mistake. Always take the sine cos of angles and not the magnitude of the force. Next, now this, don't forget any of the force. Here this 50 Newton force, it is horizontal. Yesterday I told you that if any force is horizontal and vertical, while resolving them, no need to write them in terms of sine and cos. Yeah, if any force is horizontal, its y component will be 0 and x component that force itself. Clear? So it is enough. Now this 150 Newton force, here it is acting in the third quadrant, so x component is left, y will be downward. It makes angle of 40 degree with vertical. So the component adjacent to the given angle, ये 40 से जो adjacent component है, that will be the cos component. So this will be 150 cos 40, and this will be 125 sin 40. This 100 Newton force is acting along y direction, so its x component is 0 and y component that force itself. Here, similarly, let resolve that 175 Newton force. It is acting in the fourth quadrant, so x component is right, y will be downward. It makes angle of 26.57 with horizontal corresponding angle. So this horizontal component 75 cos of 26.57 component adjacent to the given angle is cos component, and this component is other component is sine component. First step is over. Resolution. Here, tell me any difficulty in resolution. All of you have understood the definition, resolution. Yes. Yeah? Yes, sir. Next, here you have to find Yes, out the sir. summation of fx. Here, this is actually the meaning of this is algebraic summation of the component of all forces in x direction. Here, no need to write that. Here, summation of fx is enough. Clear? We know that this summation of fx is equal to rx. So let's calculate this summation of fx here, and for this we are going to use the sign convention, the component or force towards right positive. Here sign convention नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यूज करने Excuse का me, है. sir. Yes. Sir, some students are in waiting room. Yes, just I will admit them. If somebody is there in waiting room, let me know. I'll add them after 5 minutes. Okay. So summation of fx equal to rx. Here for taking this summation of all x component, only x component. X component के साथ y component add नहीं करने का है. Understood? Here, can we add this y component with x component? Algebraically, we cannot add. We can add them, but if you want to add them, you have to take a vector summation, because this is also the force and this is also the force. Understood? Here it is the summation of x component only. Here, because we are using the component method. Okay, so let's start from any one force and move either clockwise or anti-clockwise. Okay, यार ऐसे यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे ऐसे जंप मत करो यार, उसमें ये होगा कि आप कोई कंपोनेंट भूल सकते हैं, एंड एक भी कंपोनेंट अगर छूट जाए तो पूरा सम रॉन्ग यार. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. Now this component is acting towards left. According to our sign convention, the component towards left is negative, so it is minus 125 cos 30. Here no need to add brackets here. Here directly लिखो. Here एंगल के लिए ब्रैकेट डालना नेसेसरी नहीं है. आपके कैलकुलेटर में ब्रैकेट बाय डिफॉल्ट आएगा, मैं वो भी बोलता हूं आपको. This is minus 125 cos 30 towards left, negative. This component also towards left, so negative. Minus 150 cos 53.13. Then next one, this 50 Newton force. Here now it is acting along the x-axis, so its y component is 0 and x component this force itself. So no need to write it in terms of sine and cos. And towards left is minus 50. That's all. Then x component of this force 125 sine 40 towards left, so minus 125 sine 40. Then x component of this 100 Newton, it is vertical, so its x component is 0. Then x component of this 75 towards right, so plus 75 cos of 26.57. Okay. Now you have to type this in your calculator and press equal. एक ही स्टेप में आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा. यार लिसन, ये कैलकुलेट करके उसका आंसर, ये कैलकुलेट करके उसका आंसर, ऐसा मत सर. सर वो Yes. मृदुल को आप एडमिट कर दीजिए, वो नहीं है मीटिंग में, ऐसा बोल रहा. हाँ चलेगा, ठीक है. वो समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको?
Yes, You have sir. to Yes, sir. you have to calculate all this entire calculation in one step itself. Here, all this calculation you have to do in one step. इसका calculation separately, इसका calculation separately, ऐसा मत करो. Next important thing, here while doing the calculation, what I am suggesting, you reset your calculator first. आपका calculator reset कर लो. Okay, here how to reset your calculator? Listen, to reset your calculator, you have to press shift 9 के ऊपर क्लियर बटन है, वो फंक्शन हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं. क्लियर? सो वो रेड कलर में इसलिए शिफ्ट यूज करके आपको ऑपरेट करना पड़ेगा वो. ओके, हियर सो शिफ्ट 9. हियर माय कैलकुलेटर इज नॉट प्रॉपर. ओके, इट्स डिस्प्ले इज नॉट प्रॉपर. ओके, शिफ्ट 9. Now on your screen there will be the clear, setup, memory, all. So you have to clear all. So press 3 and then equal and then AC. Here आपका कैलकुलेटर रीसेट हो गया. कैलकुलेटर रीसेट हो गया मतलब इट इज डिफॉल्ट इन डिग्री मोड एंड मैथमेटिकल मोड. यार मैथमेटिकल और डिग्री मोड में चाहिए. यार उधर बाहर इसमें इधर डी लिखा हुआ रहेगा और इधर मैथ लिखा हुआ रहेगा. मींस योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड एंड मैथमेटिकल मोड. ओके, हियर सो इट शुड बी ऑलवेज इन डिग्री एंड मैथमेटिकल मोड. यार अगर आपका कैलकुलेटर मिस्टेक से भी अगर रेडियन मोड में रहेगा या तो आपका पूरा सम रॉन्ग होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा. यार इनफैक्ट सर -21 okay, let me finish. Okay, so your calculator should be default in degree mode. अगर गलती से भी वो रेडियन मोड में रहेगा ना तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा यार, और आपको समझ में भी नहीं आएगा. Yeah, that's why always reset. Keep this practice. Reset your calculator, at least for mechanics. Understood? Because in mechanics all these angles are in degree only. Here, अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में है तो कैलकुलेटर will consider this angle is in radian. Here आपका आंसर रॉन्ग आएगा. Okay. Then next, now I am typing this. Here you have to type it as it is. Now next important thing in your calculator. Here whenever you operate this trigonometric function, sine, cos, tan. Here then logarithmic function. Here in this calculator, whenever you are using this function, here by default one bracket starts. The default bracket start होता है ये calculator में. Here and now enter the value of this angle or this value for which you have to calculate the sine, cos, tan or log. Yeah, and after entering this angle, don't forget to close the bracket. ब्रैकेट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा लेकिन क्लोज आपको करने का है आफ्टर एंटरिंग द एंगल. अगर वो एंटर नहीं किया, वो क्लोज नहीं किया, फॉर एग्जांपल व्हाइल डूइंग दिस कैलकुलेशन, यार आपको क्या करने का है, -125 प्रेस करने का है, कॉस प्रेस करने का है. कॉस प्रेस करते बराबर ये इधर से ब्रैकेट स्टार्ट होगा. तो फिर जिसका कॉस कैलकुलेट करने का है वो ब्रैकेट में डालने के बाद में डोंट फॉरगेट टू क्लोज द ब्रैकेट. जिसका भी कॉस साइन कैलकुलेट करने का है वो ब्रैकेट पे चाहिए. अगर आपने ये ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, इफ यू फॉरगेट टू क्लोज द ब्रैकेट, तो इसके आगे जो भी कैलकुलेट लिखेंगे आप, ये कैलकुलेटर ये सबका कॉस्ट निकालेगा. अंडरस्टूड? Yes, so don't forget to close the bracket. Okay, now calculate this and tell me how much is the answer. Sir, -269.62. -269.62. All forces are in Newton, so this will also be in Newton. Don't forget to write the unit. Okay, यार आप लोगों को सिर्फ MCQ सॉल्व करने का प्रैक्टिस है. Okay, but now you have to write this unit properly. यार अगर यूनिट नहीं लिखा तो एग्जामिनर may cut your marks. Okay, so this is summation of fx which is equal to rx, means x component of the resultant. So we got one x component of the resultant which is -269.62 Newton. Here, now listen, what this minus sign indicate? What this minus sign indicate? Sir, it is on left side. Yes, here this minus sign indicate that the x component of the resultant is acting towards left. Here, but remember one thing, whenever for any force or for any component, important thing, whenever you are showing the correct direction, here the magnitude should be always positive. Understood?
Here, for example, suppose if I show this force towards left and its magnitude is -10, here what exactly the meaning of this? अगर ये फोर्स है ये, तो ये फोर्स को अगर मैं वेक्टर में लिखता हूं तो इट इज -10 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और since it is acting towards negative x direction, so unit vector in that direction is -i cap. Clear? So ultimately your answer is 10 I cap. इसका मतलब this force is acting along the positive x axis of 10 Newton magnitude. Clear? ये फोर्स और ये फोर्स सेम है. These both are same forces. Clear? And that's why when you are showing the correct direction, the magnitude should be always positive. Now यहाँ पे अपना आंसर आ गया -269.62 न्यूटन. दिस माइनस साइन इंडिकेट दैट द कंपोनेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इसका डायरेक्शन यहीं पे ही मत दिखाओ. अभी इसका मीनिंग क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड है rx का और ये उसका डायरेक्शन है. Am I right? लेकिन ऐसा है क्या? अगर आपका करेक्ट डायरेक्शन दिखाते हैं तो मैग्नीट्यूड शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मत दिखाओ. Whenever you want to show the correct direction, the magnitude should be always positive. So in the next step, you can make the positives, your magnitude, and then show the correct direction. So this is the x component of the resultant, and highlight this. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए 1 मार्क्स है आपका. Understood? Any doubt? ये एरो इधर ही नहीं दिखाने का है. Whenever you are showing the correct direction, the magnitude should be always positive. हाँ बोलो. सर मेरे को x का आंसर -261.52 आ रहा है. Same, sir. Yes, sir. कितना? 261. 261.52. Yes, sir. 261. Okay. 261, no problem. 261.52, right? हाँ, okay. जिसका 269 आया था क्रॉस चेक कर लो एक बार. Okay. Now in the similar way we have to calculate summation of Fy. Come on fast now. Summation of all y components. This summation of Fy equal to Ry. So calculate this summation of Fy. Yes, this summation of vertical component. Now consider this vertically upward positive. So downward is negative. So this is downward. So it is -125 sin 30. This is upward plus 150 sin 53.13. Y component of this 50 Newton is 0. Y component of this 125 is downward, so it is -125 cos 40. Clear? This 100 is vertically downward, so it is -100 because it is acting along the y-axis. So it's y component that force itself. And this y component is -75 sin 26.57. Simplify. Come on, fast. Any doubt in writing the equation? Equation में किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. हाँ चलो फटाफट सॉल्व करो फिर अभी. डोंट फॉरगेट टू क्लोज द ब्रैकेट. 150 sin 53.13. और इक्वेशन लिखते हो उसको ब्रैकेट मत लिखो क्योंकि आगे चल के बहुत सारा ब्रैकेट भी डालने का है हम लोगों को, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है. So 171.80. Right, correct. Newton. -171.8 Newton. So again this negative sign indicates, now this is the y component. For y component upward is positive. So this negative sign indicates that the y component of the resultant is in downward direction. Clear? So don't show that downward here. Because when you are showing the correct direction, the magnitude should be always positive. And when you write this magnitude positive, ये देखो ये भी हमने पॉजिटिव लिखा, ये भी पॉजिटिव लिखा, एंड दिस यू कैन यूज इट इन फर्दर कैलकुलेशन. सो अगर ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये मॉड नहीं यूज किया तो भी चलेगा. अंडरस्टूड? नाउ कैलकुलेट द आर एंड अल्फा. यूज दिस फार्मूले. Formulas are in front of you. You have the calculator. Summation of fx square plus summation of fy square. 261.52 square plus 171.8 square. That under root 312.9. करेक्ट है क्या? आया क्या ये आंसर? Yes, sir. लिसन, ये मैथ कैलकुलेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं. ये देखो क्या कर सकते हैं. यू कैन पुट अंडर रूट here and then you can put write 261.52 square plus 171.8 square.
ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो इक्वल प्रेस किया तो आपको आंसर आएगा 312.9, राइट। या तो मैंने कैसे किया, देखो मैंने पहले ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर किया, मैंने रूट नहीं लिया। इट इज 261.52 स्क्वायर प्लस 171.8 स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आया, मैंने इक्वल प्रेस किया। अभी मैं ये आंसर का रूट सर उसको लेने वाला डेसिमल मोड में कैसे रखना है, वो कैलकुलेटर को मुझे नहीं आता है। हूं। बाय डिफॉल्ट आपका जो मेरा डिफॉल्ट मोड में ही है। डिफॉल्ट मोड में उसको कैसे लाना है, वही मैं पूछ रहा था। अल्फा क्लियर, ये सॉरी शिफ्ट क्लियर, ये क्लियर फंक्शन ऑपरेट करने का आपको डिफॉल्ट मोड में लाने के लिए। क्लियर, ओके। हाँ, ये क्लियर आपके कैलकुलेटर में कहीं दूसरी जगह होगा, आई डोंट हैव दैट कैलकुलेटर। ओके, क्लियर एंड क्लियर ऑल करो तो वो डिफॉल्ट मोड में आ जाएगा। लेकिन डिफॉल्ट मोड में भी ये देखो, ये डिफॉल्ट मोड में भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है। ओके, तो फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए वो एसडी फंक्शन यूज करो। अंडरस्टूड? ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग टू यू, मैंने एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का आंसर कैलकुलेट किया। ओके, नाउ मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बोलने का आपको कि व्हेनेवर यू प्रेस, कुछ भी कैलकुलेशन करने के बाद में जब प्रेस इक्वल करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाता है। और दिस आंसर बाय डिफॉल्ट, द रिसेंट प्रीवियस आंसर बाय डिफॉल्ट गेट्स स्टोर हियर इन आंसर। ये आंसर बटन है ना, ये क्या है पता है क्या आपको? जो रिसेंट प्रीवियस आंसर रहेगा इक्वल प्रेस करने के बाद में वो इधर स्टोर हो जाता है। अभी देखो मैं एसी करता हूं, ओके स्क्रीन क्लियर हो गया। अभी मैं आंसर प्रेस करता हूं और इक्वल प्रेस करता हूं, ये देखो इधर आंसर आ गया और इक्वल प्रेस किया तो आई गॉट द रिसेंट प्रीवियस आंसर 97907। अंडरस्टूड? तो आपको whenever you want to recall the recent previous answer, you can use this answer. क्लियर? अभी नाउ व्हाट आई एम, ये देखो मैं ऑन मतलब ऑल क्लियर किया मैंने, क्लियर, लेकिन फिर भी वो आंसर स्टोर है इधर। क्लियर? कैलकुलेटर ऑफ किया तो भी वो स्टोर रहेगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल प्रेस रूट, आई विल प्रेस रूट और ये आंसर रिसेंट प्रीवियस आंसर का रूट लेने का है मुझे, क्योंकि मैंने पहले वो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ही कैलकुलेट किया था। और फिर मैं प्रेस करता हूं इक्वल, आ गया मेरा 312.91 और 9। अंडरस्टूड? नाउ tan इनवर्स, क्लियर? अभी नेक्स्ट इधर ध्यान दो, अभी tan इनवर्स इज एफ वाई अपॉन एफ एक्स, क्लियर? ऐसा जब आपका फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में कैलकुलेशन है, लिसन टू बी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहा हूं आपको। जब भी आपका कुछ फ्रैक्शन में कैलकुलेशन है ना, तो फॉर एग्जांपल सपोज आपका लेट्स कंसीडर दिस कैलकुलेशन है 30 log ऑफ 2 अपॉन 3 प्लस साइन 60, ऐसा आपका कैलकुलेशन है। फॉर एग्जांपल आपको ये कैलकुलेशन करने का है। ओके, अगर आप नॉर्मल लीनियर मोड में करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 log 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस साइन 60 बराबर आएगा क्या आंसर? इसका आंसर आपका बराबर आएगा क्या अगर मैं ऐसा टाइप करता हूं तो? बोलो। नो सर। नहीं आएगा, यार या हाँ, तो करेक्ट आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें बोलो? अगर मुझे करेक्ट करने का है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये टाइप करने का है, मुझे इसमें ही करेक्शन करने का है, क्या करना पड़ेगा? 3 प्लस साइन थीटा साइन 60 के बाहर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। हाँ यार, आपको इधर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा और इधर एंड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? कैलकुलेटर आल्सो यूज दैट BODMAS मेथड। ओके, क्लियर? सो यू हैव टू यूज दैट। हाँ बोल ऋषभ। Hello. Okay, so here also if you type it in the linear mode, इसको linear mode बोलते हैं, तो linear mode में BODMAS ऑब्जर्व होता है कैलकुलेटर में भी, so you have to be careful about that. Yeah. Then
अभी इसमें ज्यादा मिस्टेक होने का चांसेस है, क्लियर? सो टू अवॉइड द मिस्टेक्स, क्लियर, you can use the fraction function in your calculator. There is one fraction function, यार ये कैलकुलेटर भी ये देखो, ये फ्रैक्शन फंक्शन है इधर। ओके, आपके कैलकुलेटर पे भी रहेगा, लोकेशन में भी समथिंग डिफरेंट, लेकिन रहेगा, ये फ्रैक्शन फंक्शन है। यार इफ यू प्रेस दिस बटन ऑन योर कैलकुलेटर, यू विल गेट द 2 स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर का है वो न्यूमरेटर में टाइप करो यार, विच इज 30 log 2, don't forget to close the bracket, this is 30 log 2, and denominator में now this, ये जो बड़ा बटन है, this is the navigation key. With the help of this you can navigate this cursor right, left, up and down. So now I have to move the cursor below here in denominator. So press this downward navigation key. Your cursor is in denominator now. Now press, now अभी यहाँ पे ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है। 3 plus sin 60, 60 के लिए ब्रैकेट डालो यार। सो अभी इधर 3 sin 60 के लिए ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज इन द डिनोमिनेटर। क्लियर? प्रेस इक्वल, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ टू कैलकुलेट दैट अल्फा वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। क्लियर? इट इज इनवर्स ऑफ tan। यार ब्रैकेट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया। अभी इसमें मैं ये डालता हूं क्या, फ्रैक्शन फंक्शन। यार इट इज समेशन ऑफ fy व्हिच इज 171.8। मैं पॉजिटिव वैल्यू ही डालता हूं डिनोमिनेटर में, मूव द कर्सर इन डिनोमिनेटर, समेशन ऑफ fx 261.52। क्लियर? प्रेस इक्वल। लास्ट का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा, मैंने लास्ट का ब्रैकेट क्लोज किया ही नहीं क्योंकि उसके बाद में कैलकुलेशन ही नहीं है। सो इट इज 33.3, राइट? सो अल्फा इक्वल टू 33.3 आया क्या सबको? Yes, sir. क्लियर? नेक्स्ट सम से मैं नहीं बताने वाला हूं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। क्लियर? नाउ समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy, r एंड अल्फा। 5 मार्क्स का अगर सम है तो 1 2 3 4 मार्क्स आएंगे। ओके, नाउ वन लास्ट 1 मार्क्स फॉर शोइंग द पोजीशन ऑफ दिस रिजल्टेंट। क्लियर? नाउ व्हेन यू आर इन दिस सम, रिजल्टेंट के सम में व्हेन यू कैलकुलेट दिस r एंड अल्फा, यहां पे एक सिंपल फिगर ड्रॉ करो। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, because in concurrent force system resultant act at the point of concurrence only, and show the position of the resultant. Now its x component is negative, means towards left, y component is negative, means downward. Here if the x component of resultant is left, y is downward, means the resultant will be in which quadrant? अगर दोनों negative है तो resultant will be in which quadrant? Resultant will be in the third quadrant. Resultant will be in third quadrant. This is your resultant 312.9. It's in this alpha is always inclination with horizontal 33.3. So this is the single equivalent force for these 6 forces. क्लियर? तो मुझे अगर कुछ एप्लीकेशन है जिसमें ये 6 फोर्सेस एक्ट होता है और इंस्टेड ऑफ दैट 6 फोर्सेस अगर मुझे सिंगल फोर्स अप्लाई करने का है which will produce the same effect, so this is the magnitude and this is the direction of that force, clear, to produce the same effect. Clear? Any doubt? तो ऐसा अगर सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें फोर्सेस दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। या डोंट मिस एनी ऑफ द स्टेप। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. Understood? Okay. Now next sum. Sum number 2. ये सिंपल सम है जिसमें फोर्सेस दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। इसके बाद में हम सम सॉल्व करेंगे जिसमें रिजल्टेंट दिया रहेगा एंड इट में हैज टू कैलकुलेट सम ऑफ द फोर्सेस, रिवर्स मेथड। ओके, ये सम नंबर 2। Now in sum number 2 the figure is not given, so you have to read the question carefully and try to draw the figure. Here it is given that the following forces act at a point. If the following forces act at a point, means it become a concurrent force system, right? So let this is the concurrent force system, and whenever you are drawing the concurrent force system, always draw this reference x and y axis. Here, because it becomes easy to show the angles with respect to horizontal and vertical. Here. Now in this one it is given that the 20 Newton incline at 30 degrees towards north of east. Okay. Now here the forces are given their magnitude and direction, but their directions are given that they are acting along north, west, south and east like that. Yeah. So for that on this plane paper this upward direction कौन सा रहता है? On the plane paper, हाँ, north, ये south.
राइट साइड का East. East. east or west. These are the four main directions. Here, similarly, there are sub directions also. Four sub directions. We are assuming that the sub directions are exactly in between these two. Okay, clear? So, north और east के बीच में कौन सा direction रहेगा? Northeastern. It is northeast. This is northwest. This is southwest, and this is southeast. Okay, these are the four sub directions. Now here it is given that the first force is acting 20 Newton incline at 30 degree towards north of east. Here magnitude of the force is 20 Newton. अभी देखो इसका डायरेक्शन दिया नहीं है, whether it is acting toward the point or away from the point. अगर नहीं दिया तो by default away ले लो. So this 20 Newton force is acting. This is 20 Newton acting away from the point. अभी इसका इंक्लिनेशन दिया है कितना? 30 degree towards north with respect to east or to east. Means east से लेके towards north तक उसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री. यह 30 डिग्री. ये 30 डिग्री towards north or with respect to east. Understood? Here ये एंगल को डिनोट करते थे 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ. अंडरस्टूड? ये समझ में आया क्या? ये देखो एरो दिखा है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ओके, नेक्स्ट 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ. 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ is acting along the north direction, is along positive y direction. 30 Newton towards northwest. अभी 30 Newton towards northwest. Now I told you that the northwest is exactly in between north and west. So this 30 Newton is acting towards northwest. Now if it is towards northwest, how much is this inclination? वो exactly middle में 45. 45. It is 45. Okay, this 45. one is 45. Okay. Next, 35 Newton incline at 40 degree towards south of west. Towards south of west. मतलब ये साउथ वेस्ट के बीच में है. मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन और एंगल क्या दिया है 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट. मींस दिस एंगल इज 40 डिग्री. 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट. Here, four forces are given and it is asked find the magnitude and direction of the resultant force. ये चार forces का resultant calculate करने का है. Here, once the figure is drawn, remaining procedure is exactly similar. Okay, here, so can you solve? Can you solve? ये तीन forces को resolve करो. Yes, sir. ये तीन forces को resolve करो, component लिखो, then calculate summation of fx, summation of fy, r alpha और उसका quadrant. It acts in which quadrant? That's all. Any doubt? No, sir. Okay, next, sum number 6. Okay, अभी ये देखो, ये जो दो सम सॉल्व किए, क्लियर, दिस वाज द, लेट्स से दिस एज अ टाइप 1 क्वेश्चन. इसको हम बोलेंगे टाइप 1 क्वेश्चन. क्या किया इसमें हम लोगों ने? दिस वाज द टाइप 1 क्वेश्चन. टाइप 1 था, इसके पहले लिखो टाइप 1 क्वेश्चन. क्या था टाइप 1 में? यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट when all forces are given. ये टाइप 1 क्वेश्चन. टाइप 1 क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजॉल्व फाइंड समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, आर एंड अल्फा. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द टाइप 2 क्वेश्चन. क्लियर? टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है? यार इन टाइप 2 क्वेश्चन में रिजल्टेंट इज गिवन. क्लियर? सो रिजल्टेंट इज गिवन एंड इट मे आस्क टू फाइंड आउट सम ऑफ द फोर्सेस. Here, magnitude of one force or direction of another force. Here, one important thing I would like to tell you is that in case of a concurrent force system, चाहे वो resultant का सम रहने दो या equilibrium का सम रहने दो. Here, in case of a concurrent force system, we can calculate only two unknowns.
कितने अननोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं? सिर्फ 2। इसमें भी हमने 2 ही अननोन कैलकुलेट किए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। Understood? Here, by using these 2 formulas, we have calculated these 2 unknowns. Here, all of you know this basic concept of mathematics. अगर 2 unknowns है, दो equations लगेगा ही. Here, with the help of 1 equation, we cannot calculate the 2 unknowns, and with the help of 2 equations, we cannot calculate the 3 unknowns. अगर 3 unknowns है, तो 3 equation ही लगेगा उसके लिए. Okay? So for concurrent force system, we can calculate only 2 unknowns. Here, now अभी type 2 में क्या रहेगा? रिजल्टेंट दिया रहेगा एंड इसमें आज टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। यार उसमें भी 2 ही अननोन रहेगा, लेकिन वो टाइप 2 क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस मेथड, यार यू हैव टू यूज दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन। यहां से आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे यार, एंड फ्रॉम दैट 2 इक्वेशंस यू विल गेट आंसर। ओके, तो टाइप 2 क्वेश्चन में क्या रहेगा? व्हेन मैग्नीट्यूड एंड और direction of resultant is given. कभी कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, कभी कभी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ दिया रहेगा, कभी सिर्फ डायरेक्शन दिया रहेगा। एनीथिंग अबाउट द रिजल्टेंट इज गिवन हियर, देन you have to use, then instead of using our this normal method, then use प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। आपको ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन यूज करने का है। द रीजन इज दैट प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन मींस ये यूज करने का है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू आर वाई। रिजल्टेंट दिया है मतलब उसके लिए हम लोग आर एक्स और आर वाई लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? और जो फोर्स के बारे में अननोन है वो इधर रहेगा। सो इफ यू सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस यू विल गेट द आंसर। Okay, so you have to use the principle of resolution. While using this principle of resolution along x and y direction, सबसे important thing, ये component of resultant को fx और fy के साथ add नहीं करने का है। कल ही बोला था, summation of fx is equal to rx, इसको इसके साथ add नहीं करने का है। Understood? So write down this type 2, when magnitude and or direction of the resultant is given, then use the principle of resolution. That is summation of fx equal to rx and summation of fy equal to ry. Here our next sum is based on this type 2 only, जिसमें resultant दिया है। Sum number 6. What is given? One force system is given. Some forces are acting on this bracket. This is 100 Newton. It makes angle of alpha degree with horizontal. Second force is 150 Newton. Here it makes angle of 30 degree with the line of action of this first force. 30 degree. This is the angle between these 2 forces, and third force is 200 Newton. Here which is makes angle of again alpha degree with horizontal. Yeah. So these 3 forces are acting on a bracket. Question में क्या पूछा है देखो? For the given force system, determine 1, the required angle alpha if the resultant of the 3 forces is to be vertical. ये अल्फा कैलकुलेट करने का, ये फोर्सेस में का, ये अल्फा ऐसा कैलकुलेट करने का है कि ये तीनों का रिजल्टेंट वर्टिकल आना चाहिए। तीनों का रिजल्टेंट should be along the y axis. Vertical means along y axis. Okay, now it is not given whether it is vertically upward or downward, only it is given that it should be vertical. Yeah, so it is vertical, resultant should be vertical. You can assume any direction initially you can assume any direction. Yeah, अभी अगर आपने लॉजिकल थिंक किया तो ये तीनों फोर्सेस का जो शो किया है रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा? डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि इसका भी y कंपोनेंट डाउनवर्ड है, इसका भी y कंपोनेंट डाउनवर्ड है, इसका भी y कंपोनेंट डाउनवर्ड है, राइट? तो ये डाउनवर्ड ही आएगा, बट नीड नॉट नेसेसरी दैट कि आपको डाउनवर्ड ही इमेजिन करने का, आप इसको अपवर्ड भी अज्यूम कर सकते हैं। ओके, मैं अपवर्ड ही अज्यूम करता हूं, डाउनवर्ड किया तो क्या होगा मैं बाद में बोलता हूं आपको। यार, now since we have to find out this alpha such that the resultant of these 3 forces should be a vertical force,
यार एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट दैट करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का है। डायरेक्शन तो दिया है, अल्फा तो दिया है, मतलब सॉरी don't get confused between this alpha and this alpha. This is the direction of resultant, or this is the angle made by this 120 Newton force with horizontal. It would be better if you consider this as a theta. Doesn't matter, but okay. Now here resultant का direction दिया है, magnitude नहीं दिया है, resultant का direction दिया है। मैंने बोला आपको कि if anything about the resultant is given, use the principle of resolution. Understood? Now in this question, there since resultant is vertical, अगर रिजल्टेंट वर्टिकल है, अगर कोई फोर्स वर्टिकल है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा? सिंस रिजल्टेंट इज वर्टिकल, हेंस हाउ मच इज द आर एक्स? 0. एंड हाउ मच इज द आर वाई? if any force is vertical, its x component is 0 and y component that force itself, isn't it? Therefore ry equal to r. Now we assume that this r is upward, so it is plus r, because our sign convention is upward is positive. अगर किसी ने डाउनवर्ड अज्यूम किया तो इधर माइनस आर लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या आपको? यस सर। ये हाँ ओके। सो व्हेनेवर डाउनवर्ड अज्यूम करने से क्या होता है? डाउनवर्ड अज्यूम करें, ये इसके बाद में याद रखो, कभी भी किसी फोर्स का अगर डायरेक्शन एग्जैक्टली पता नहीं है कि मतलब इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इनिशियली आपको उसको अज्यूम करने का है कोई भी एक डायरेक्शन। विद दैट अज्यूम डायरेक्शन यू हैव टू सॉल्व द सम, एंड आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ द सम यार आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यार इफ दैट मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, this positive sign indicate that this assumed direction is correct, and if this magnitude is negative, this negative sign indicate that the assumed direction is wrong. Understood? यार तो मैंने इसको इधर पॉजिटिव लिखा, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रिजल्टेंट इज वर्टिकली अपवर्ड, मैं वो भी बताता हूं आपको यार। ओके, नाउ यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? फर्स्ट वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर एक्स। लास्ट सब में ये अननोन था, अभी ये नोन है। ओके, सो विल राइट बोथ साइड्स। क्लियर? सो लेट रिजॉल्व दिस फोर्सेस। क्लियर? 100 न्यूटन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। इट मेक्स एंगल ऑफ अल्फा डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, सो दिस विल बी 100 cos अल्फा एंड दिस इज 100 sin अल्फा। एम आई राइट? लेट रिजॉल्व दिस 150 न्यूटन फोर्स इनटू टू कंपोनेंट। ये देखो, अभी whenever you will resolve any force into two rectangular component along x and y direction, आपको एक तो ये एंगल पता रहना चाहिए, नहीं तो ये एंगल। हाँ, either you should know the angle with horizontal or vertical. So ये 150 का एंगल with horizontal कितना है? अल्फा प्लस 30। 30 plus alpha. Okay, it is 30 plus alpha. Okay, so this component become 150 cos 30 plus alpha. Don't write only 30. It is 150 sin of 30 plus alpha. Have understood this? Yes, sir. Then resolve is 200 Newton force into two component. This angle is alpha, so this is 200 cos alpha and this is 200 sin alpha. Am I right? This alpha is the corresponding angle. Yes, student again get confused कि सर ये alternate है या corresponding है इंजीनियरिंग में आने के बाद में भी। ओके, तो उसके लिए सिंपल एक है कि अगर ये दिस लाइन इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो आप इसको किधर भी रिजॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा ही रहेगा। इधर हॉरिजॉन्टल क्या है साथ है ना, इधर भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही रहेगा। यू डोंट हैव टू बॉदर वेदर इट इज अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग। ओके, now I have resolved the forces and let's write down the equation now. Use the principle of resolution. Now summation of fx. Summation of fx is 100 cos alpha plus 150 cos 30 plus alpha minus 200 cos alpha इक्वल टू, ये देखो समेशन ऑफ fx होगा, तीनों फोर्सेस का कंपोनेंट का समेशन ले लिया, इक्वल टू rx। rx कितना है? 0, इक्वल टू 0। It is given. Here now if you simplify this equation, say this as equation number 1,
If you simplify this equation, if you observe this equation, ये equation में कितने unknowns है? How many unknowns are there in this equation? सर एक ही unknown है, that is alpha. यार और एक equation solve करके एक unknowns आपको मिल सकता है. अगर इसमें दो unknowns रहते थे, if there would have been two unknowns in this equation, so say these are the equation number 1. We know that we cannot calculate the two unknowns by using only one equation. So say these are the equation number 1, and let's find out another equation by using another condition and solve them simultaneously. We'll get the two unknowns. लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन मिला और एक ही अननोन है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं एंड गेट द अल्फा. ओके क्लियर? तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर अपना जिस नॉर्मल मेथड यूज किया, ट्रेडिशनल मेथड, तो यू हैव टू एक्सपेंड दिस cos a plus b क्लियर, और फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? इंस्टेड ऑफ दैट, लिसन केयरफुली, इंस्टेड ऑफ दैट इन योर कैलकुलेटर, अभी आपके कैलकुलेटर में कहां पे है वो देखो. इन योर कैलकुलेटर ये देखो एक मोड फंक्शन है, एक मोड. ओके यार, ये मोड अगर प्रेस करता हूं ना तो इन योर कैलकुलेटर यू विल गेट द डिफरेंट मोड. ओके, कॉम्प मोड है, क्लियर, कॉम्प्लेक्स मोड है, टेबल मोड है, क्लियर, देन स्टैटिस्टिक्स मोड है, मैट्रिक्स मोड है, और उसमें का 5 नंबर्स का मोड है इक्वेशन. ओके क्लियर, टू सॉल्व equation you have to enter in that equation mode, and to enter in that equation mode you have to press 5. 5 नंबर का इसलिए. So if I press 5 it will enter in the equation mode. तो उसमें 4 अलग ऑप्शंस आपके कैलकुलेटर पे आ गए. यार पहला और दूसरा ऑप्शन है टू सॉल्व द साइमल्टेनियस, सॉरी हाँ यस, पहला और दूसरा ऑप्शन है टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. इन फर्स्ट वन देयर आर 2 अननोन्स x एंड y, तो 2 इक्वेशंस लगेंगे. इन सेकंड there are 3 unknowns x, y, z, तो उसमें 3 इक्वेशंस लगेंगे. थर्ड ऑप्शन इज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, जिसको सॉल्व करने के लिए आप वो फार्मूला यूज कर देते हैं -b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, राइट? अभी वो यूज करने का जरूरत नहीं है. जस्ट एंटर इन द थर्ड एंड एंटर द वैल्यू ऑफ a b c, यू विल गेट द आंसर. ओके क्लियर? एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन. ओके ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट यार, सबको बोल रहा हूं मैं कि आप इसके साथ जो मैनुअल आया है उसमें ये मोड कैसे यूज करने का है, हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो देख लो, पढ़ लो बराबर. ओके यार, लेकिन ये इक्वेशन अलग ही है. इट इज नाइदर स्टैंडर्ड साइमल्टेनियस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टूड? यार इसमें एक इक्वेशन है और एक अननोन है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर देयर इज वन इक्वेशन एंड वन अननोन, वो कौन से भी फॉर्म में रहने दो यार, वो लॉगरिथमिक इक्वेशन रहने दो, एक्सपोनेंशियल रहने दो, किधर भी रहने दो, कौन सा भी इक्वेशन रहने दो, बट व्हेन वन इक्वेशन एंड वन अननोन इज देयर, यार टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन इन योर कैलकुलेटर देयर इज वन सॉल्व फंक्शन. देखो सॉल्व फंक्शन किधर है, एक सॉल्व फंक्शन है सेकेंड लाइन पे, ये दिखा गया, ये सॉल्व देखो, कैलकुलेट जो है ना उसके ऊपर सॉल्व फंक्शन है. देखो एक ही बटन पे 3 फंक्शन है, एक ही बटन पे 3 फंक्शन है. एक कैलकुलेट का फंक्शन है, सॉल्व और बाजू में इक्वल का साइन है. दिखा क्या ये? तो इसमें से ये सॉल्व फंक्शन आपको यूज करने का है टू सॉल्व दिस इक्वेशन. किसके लिए यूज करने का है इसके बाद में ध्यान रखो. सॉल्व फंक्शन किसके लिए यूज करने का है? Whenever there is one equation and one unknown, you have to use the solve function. यार वो इक्वेशन कुछ भी रहने दो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, कुछ भी रहने दो. वन इक्वेशन एंड वन अननोन है तो सॉल्व फंक्शन यूज करने का. अभी सॉल्व फंक्शन कैसे यूज करने का ये समझ में आया क्या सबको, कि सॉल्व फंक्शन कब यूज करने का है? यस सर. कब यूज करने का है समझ में आया क्या? हैव अंडरस्टूड दिस? ओके यार, अब ये कैसे यूज करने का है? Now how to use this? Now to use the solve function, what you have to do? You have to type this. बोलो. So in this equation, how many unknowns are there? एक ही तो unknown है अल्फा. So no sir, in calci, how many we have to write? कैल्सी में तो आप कितने भी unknowns लिख सकते हैं.
ये देखो इन योर कैलकुलेटर यू कैन यूज दिस A, B, C, D, E, F, इसके बाद में ये ब्रैकेट के उसके ऊपर X है, ये Y है, ये सब कुछ आप अननोन करके यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन whenever you are using solve function, listen carefully, solve function जब यूज करेंगे तो पहला ही कंडीशन क्या है, इक्वेशन में एक ही अननोन चाहिए। ओके यार, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, whenever you are using the solve function, आपका अननोन कुछ भी रहने दो, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ए, बी, सी, आपको सॉल्व फंक्शन के लिए ये x अननोन को आपको ये x से ही रिप्लेस करने का है, ये x से ही आपको रिप्लेस करने का है। मींस ये इक्वेशन जो अल्फा के टर्म में, आई एम गोइंग टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ x, अल्फा को मैं x से रिप्लेस करूंगा। ओके यार, अभी क्या करने का है, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द सॉल्व फंक्शन, यार पहले तो कैलकुलेटर को रीसेट कर लो, शिफ्ट 9 3 इक्वल एंड देन AC, रीसेट कर लिया। अभी ये क्या इक्वेशन एज इट इज आपको टाइप कर देगा आपके कैलकुलेटर पे, एंड यू हैव टू टाइप बोथ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों टाइप करने का है, और ये अल्फा को रिप्लेस करने का है x से। ये देखो अभी आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। ओके, मैं टाइप कर रहा हूं अभी, 100 cos, अल्फा को x से रिप्लेस करने वाला हूं मैं, ये x है और ये रेड कलर में है, तो इसको टाइप करने के लिए मुझे ये अल्फा का कीपैड यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट का नहीं। सो अल्फा ब्रैकेट क्लोज, तो x आ गया x दिख रहा है। डोंट फॉरगेट ब्रैकेट को क्लोज भी करना होगा। अरे होगा ना, विदाउट क्लोजिंग द ब्रैकेट, मैंने पहले ही बोला ये एंगल है ना, आपके कैलकुलेटर में इधर बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट स्टार्ट होगा, तो ये ब्रैकेट कब क्लोज करने का है, ये कॉस का जो जिसका कॉस निकालने का है वो एंगल इधर डालने के बाद में डोंट फॉरगेट टू क्लोज द ब्रैकेट। अंडरस्टूड? ये देखो मैंने क्लोज कर लिया, ये ब्रैकेट दिख रहा है ना। नाउ आई एम गोइंग टू टाइप दिस, इट इज प्लस 150 कॉस ऑफ 30 प्लस अल्फा, अल्फा मतलब मेरा x प्रेस किया, फिर कंप्लीट द ब्रैकेट, ये सेकंड टर्म भी टाइप कर लिया मैंने, 150 cos 30 प्लस x, और ये 150 और cos के बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन डालने का जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई है, माइनस 200 cos ऑफ अल्फा x, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड टाइप। यार अब ये इक्वल के लिए इक्वल टू 0 वो भी टाइप करने का है, वो इक्वल के लिए ये इक्वल नहीं प्रेस करने का है, डोंट प्रेस दिस इक्वल, आपको ये इक्वल क्रॉस ये सॉल्व फंक्शन के बाजू में जो इक्वल साइन है ना वो कॉल करने का है यार, और वो कॉल होगा, वो टाइप होगा बाय अल्फा, अल्फा इक्वल, वो आ गया ये इक्वल का साइन, अल्फा कैलकुलेट का फंक्शन, तो वो इक्वल का साइन आएगा, एंड राइट साइड में जो है वो राइट साइड में टाइप करो, वो 0 है तो मैं 0 टाइप करता हूं। क्लियर हो गया? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टाइप, कुछ डिफिकल्टी है क्या इक्वेशन टाइप करने के लिए? आई कैलकुलेटेड दिस इक्वेशन इन माय कैलकुलेटर, इसमें कुछ डिफिकल्टी है क्या, बोलो फटाफट। नो सर। सर आप क्या फिर से कैलसी में करके दिखा सकते हो? हाँ ये देखो मैंने एक ये कैलकुलेट ये इक्वेशन टाइप करने का एज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, समझ में आया? नेक्स्ट, अभी इक्वेशन में कुछ भी अननोन रहने दो, उसको आपको ये x से रिप्लेस करने का है, x। क्लियर? ये x से रिप्लेस करने का है। x कैसे रिकॉल करेंगे? अल्फा ब्रैकेट क्लोज x आ गया, अल्फा को x से रिप्लेस करने का है। नाउ आई एम गोइंग टू टाइप दिस इक्वेशन, इट इज 100 cos अल्फा x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 150 cos देन ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 30 प्लस अल्फा, अल्फा मतलब x ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 200 cos अगेन x ब्रैकेट कंप्लीट, लेफ्ट हैंड साइड टाइप हो गया या देन इक्वल, इक्वल के लिए ये फंक्शन, ये इक्वल, नॉर्मल इक्वल नहीं अपना। ओके, सो देन शिफ्ट एंड दिस फंक्शन, तो इक्वल टाइप हो गया, राइट हैंड साइड में है 0, तो 0, ये इक्वेशन मेरा टाइप हो गया। यार एनी डाउट, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके सर इक्वल के लिए क्या करना है? इक्वल के लिए अल्फा, और ये उसके सेकंड लाइन में फर्स्ट बटन जो है कैलकुलेट, उसके ऊपर सॉल्व फंक्शन है जो शिफ्ट करके यूज होगा, और
उसके बाजू में रेड इसमें अल्फा इक्वल है, तो ये इक्वल को अल्फा करके यूज करना पड़ेगा। आपके कैलकुलेटर पे टोटल 3 कीपैड है, 3 कीपैड है, एक नॉर्मल कीपैड, एक शिफ्ट यूज करके वाला कीपैड जिससे सॉल्व फंक्शन ऑपरेट होगा, और तीसरा अल्फा वाला कीपैड जिससे इक्वल फंक्शन यूज होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको इक्वल अगर प्रेस करने का है तो अल्फा और ये कैलकुलेट का फंक्शन प्रेस करो तो ये अल्फा सॉरी इक्वल आ जाएगा। अल्फा एंड कैलकुलेट, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो ना, निकाल दो इक्वेशन और प्रेस अल्फा एंड कैलकुलेट, आपको इक्वल दिखेगा उधर, वो इक्वल चाहिए, नॉर्मल इक्वल नहीं। नॉर्मल इक्वल प्रेस किया तो आपको इक्वल का साइन टाइप नहीं होता है कैलकुलेटर पे, वो आंसर देता है डायरेक्टली। हाँ चलो, इक्वेशन टाइप हो गया, इक्वेशन टाइप हो गया, ओके। अभी देखो मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूं। ये जब सॉल्व फंक्शन यूज करते हैं ना, व्हेन यू आर यूजिंग द सॉल्व फंक्शन, कैलकुलेटर में जो प्रोग्राम लिखा गया है यार, वो प्रोग्राम इज रिटन बाय यूजिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड। ये है आपको फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में, न्यूटन रैप्सन मेथड। यार न्यूटन रैप्सन मेथड इज इटरेटिव बेस्ड मेथड। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं यार, क्या करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड में, ये अल्फा का कुछ भी एक रैंडम वैल्यू लेते हैं, we consider any random value of this alpha, okay, and with this random value of the alpha we'll calculate the value of left hand side and right hand side. Here if this left hand side and right hand side value both are equal, means that is the correct value of alpha. Clear? If this left hand side minus if this left hand side minus right hand side equal to 0, means that is the correct value of the alpha. Now, if it is not equal to 0, यार कुछ रैंडम नंबर आएगा, तो फिर कैलकुलेटर क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ अल्फा सिलेक्ट करेगा रैंडमली, फिर लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा कि 0 आता है क्या नहीं। यार अभी देखो, ये अल्फा 1 का जो इनिशियल रैंडम वैल्यू लिया, उससे ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड निगेटिव आया, एंड जब अल्फा 2 लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड पॉजिटिव आया, ये वैल्यू आया पॉजिटिव। यार तो इससे कैलकुलेटर समझ जाएगा कि जो करेक्ट आंसर है अल्फा का इज इन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और ये कैलकुलेटर डू द लॉट ऑफ इटरेशंस एंड मिनिमाइज दिस स्पैन। यार इट गोज ऑन नैरोइंग दिस स्पैन, और एक ऐसे वैल्यू पे आएगा जहां पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड 0 आएगा। अंडरस्टूड? यार तो अभी क्या करने का है, ये कैलकुलेट करने के बाद में जो इनिशियल रैंडम वैल्यू है अल्फा का, इनिशियल वैल्यू, वो कैलकुलेटर को सिलेक्ट करने के नहीं देने का है, हम सिलेक्ट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द इक्वेशन में ये इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 डालेंगे, अल्फा का इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 डालेंगे, या कुछ भी डालेंगे तो चलता है, लेकिन हम लोग 0 डालेंगे। अभी देखो ये कैलकुलेटर पे इक्वेशन दिख रहा है आपका, इधर ध्यान दो बराबर, ये डबल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ना ही किधर मिलेगा आपको कौन से बुक में, ओके। तो ये इक्वेशन टाइप हो गया। नाउ आई हैव टू यूज दिस सॉल्व फंक्शन, ये सॉल्व फंक्शन मुझे यूज करने का है। तो टू यूज दिस सॉल्व फंक्शन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट एंड दिस, सो सॉल्व। सो मैं शिफ्ट सॉल्व, कैलकुलेटर पे क्या आ गया, सॉल्व फॉर एक्स, हम लोगों को सॉल्व फॉर एक्स है, और जो इधर का वैल्यू है ना, ये 0 दिख रहा है, देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब इनिशियल वैल्यू। यार इधर आपका कभी कभी दूसरा कुछ भी नंबर आ सकता है, अगर कुछ भी दूसरा नंबर आया ना तो ये सॉल्व फॉर एक्स आने के बाद में, नहीं तो शिफ्ट सॉल्व प्रेस करने के बाद में इनिशियल वैल्यू जो आपको 0 डालने का है तो वो 0 प्रेस करो, ये इनिशियल वैल्यू आ गया है। नाउ कैलकुलेटर विल टेक इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा एट 0 एंड देन प्रेस दिस इक्वल, ओके। ये प्रेस इक्वल करता हूं तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट हैज टू परफॉर्म लॉट ऑफ इटरेशंस, ओके। कितना आया एक्स का वैल्यू, 21.73 कुछ तो अभी, और लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड कितना आया, 21.73803338। अरे बस 2 ही डिजिट बोला था ना, मैं बोला था ना लास्ट लेक्चर में 2 ही डिजिट बोलने का करके। लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड 0 आया, देखो कभी कभी ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड सब फ्रैक्शन में आ सकता है, दैट यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। क्लियर? सो एक्स का वैल्यू मतलब अल्फा का वैल्यू आएगा 21.73। अंडरस्टूड? क्लियर? सो दिस अल्फा इक्वल टू 21.7
738, so it is 74 हो गया, 21.74, right? It is in degree because it is the angle. Any doubt? Have you understood this? Come on. Yes, sir. Okay. Yes, sir. यार क्या किया, इक्वेशन टाइप किया, यार देन शिफ्ट सॉल्व जीरो एंड इक्वल, शिफ्ट सॉल्व जीरो इक्वल, इक्वेशन टाइप होने के बाद में याद रखो शिफ्ट सॉल्व जीरो इक्वल, यार शिफ्ट सॉल्व जीरो इक्वल, ये 4 स्टेप फॉलो करने का आपको आंसर आ जाएगा। अगर कुछ एब्सर्ड आंसर आता है, इफ यू विल गेट सम एब्सर्ड आंसर, कभी कभी एब्सर्ड आंसर आता है, ओके, इफ यू गेट सम एब्सर्ड आंसर, फॉर एग्जांपल सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये x है यार डिस्टेंस है, ये इट इज अ डिस्टेंस। सर आप जो बोल रहे हैं ना, मतलब वो इक्वेशन टाइप करने के लिए शिफ्ट सॉल्व और जीरो दबाना है। शिफ्ट सॉल्व जीरो इक्वल, ये इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम लोग उसको। ओके ओके, आपने शिफ्ट सॉल्व इक्वल दबाया तो भी आंसर आएगा, हाँ शिफ्ट सॉल्व इक्वल दबाया तो भी आंसर आएगा, ये जीरो स्किप किया तो भी आंसर आएगा यार। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इनिशियल वैल्यू, जो इटरेशन के लिए जो इनिशियल वैल्यू लगेगा ना, वो असाइन हम लोगों को करने का, ये वो इनिशियल वैल्यू है, वो मैं वही बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। अगर सपोज कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, इसमें वन इक्वेशन है, वन अननोन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इक्वेशन मोड में जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, और यही इक्वेशन आप लोग सॉल्व फंक्शन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं यार। फॉर एग्जांपल सपोज अभी ये x जो है वो डिस्टेंस है, आई एम गोइंग टू डिनोट इट बाय d, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अभी आपने इसको टाइप किया, आपने शिफ्ट सॉल्व जीरो इक्वल प्रेस किया और आपको आंसर आया d इक्वल टू -2, ओके यार, शिफ्ट सॉल्व जीरो प्रेस किया और डिस्टेंस आपका आंसर आया -2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दो आंसर्स रहेगा, एक -2 एक रहेगा और एक सपोज 5 रहेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दो रूट्स आता है। फॉर एग्जांपल यार आपने शिफ्ट सॉल्व जीरो प्रेस किया तो आपको आंसर आ गया -2। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो डिस्टेंस का इक्वेशन है, d इज द डिस्टेंस which is a scalar quantity which should be always positive यार। तो हम लोग को निगेटिव रूट मिला, निगेटिव आंसर मिला बाय सॉल्व फंक्शन यूज करके। इक्वेशन मोड में जाके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं तो प्रॉपर 2 रूट मिलेगा, सॉल्व फंक्शन से भी 2 रूट मिलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो 2 रूट कैसे लाने का है यार, मैं वही बताता हूं आपको। तो आपने ये टाइप कर लिया, शिफ्ट सॉल्व जीरो इक्वल प्रेस किया तो आपको -2 आ गया, आपको समझ में आएगा कि सिंस दिस इज द डिस्टेंस इट कैन नॉट बी माइनस, मतलब आपका आंसर एब्सर्ड आ गया, नॉट अ रिलेवेंट आंसर। फिर क्या करने का यार, अभी देखो सी ऑन माय कैलकुलेटर, मेरे कैलकुलेटर में वही इक्वेशन है, मतलब वही आंसर है 21.73। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज नाउ एब्सर्ड आंसर यार, तो क्या करने का आपको, ये राइट कर्सर प्रेस करने का है, राइट कर्सर, ये राइट कर्सर प्रेस करने के बाद में आपका ओरिजिनल इक्वेशन इंटैक्ट एज इट इज आ गया, ओके। अभी आपको और एक बार ये इक्वेशन सॉल्व करने का है, शिफ्ट सॉल्व सॉल्व फॉर x, अभी पहले 0 था देखो यार, अभी ये 21.73, अभी इसके बाद में अगर मैं 0 प्रेस करता हूं तो इटरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके यार। अभी मुझे 0 नहीं प्रेस करने का, अभी मैं ये इनिशियल वैल्यू जो है ना वो मैं कुछ 5 डालता हूं, ये इनिशियल वैल्यू 5 आ गया है, और देन मैं प्रेस करता हूं इक्वल, ओके। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। सेम है ना, द रीजन इज दैट क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, इसका ये लीनियर इक्वेशन, इसका एक ही आंसर आएगा, अंडरस्टूड। आप ये इनिशियल वैल्यू कुछ भी डालो एक ही आंसर आएगा, लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जिसके 2-3 रूट्स रह सकते हैं, क्यूबिक भी रहेगा कभी कभी, तो उसमें अगर आपको अलग दूसरा रूट फाइंड आउट करने का है तो क्या करने का है, ये इनिशियल वैल्यू चेंज करने का है। आपको जो भी आंसर आता है ना, ये इनिशियल वैल्यू, अभी देखो इसका ये इक्वेशन का एक रूट आ गया आपका -2, दूसरा रूट आया 5। अगर आपने इनिशियल वैल्यू 0 डाला तो ऑन नंबर लाइन 0 के क्लोज में जो रूट है वही आंसर आएगा, ओके। 0 के क्लोज में जो रूट है वही आंसर देगा वो, या लेकिन आपको समझ में आएगा ये एब्सर्ड आंसर है, या तो फिर क्या करने का, प्रेस दिस राइट नेविगेशन की, गो ऑन द इक्वेशन, देन अगेन शिफ्ट सॉल्व एंड देन इनिशियल वैल्यू जो है यार, यू कैन चेंज दैट, यू कैन टेक इट +10
प्लस 10 वैल्यू डाल दो एंड देन प्रेस इक्वल, तो ये 10 के क्लोज में जो रूट आएगा वो आंसर आएगा आपका, वो चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड डेज यार? लेकिन ये लीनियर Yes, है, sir. इसमें एक ही है, इसमें कुछ भी इनिशियल वैल्यू डालो, 0 डालो, 100 डालो, 1000 डालो, आपको ये एक ही आंसर आएगा। यार थोड़ा अलग आंसर आ सकता है क्योंकि ये एंगल है यार, क्योंकि फॉर एनी कॉस ऑफ अल्फा यार मल्टीपल आंसर एंगल्स आर पॉसिबल, ओके यार। लेकिन अगर नॉर्मल लीनियर इक्वेशन लिया तो उसका एक ही रूट आएगा। नाउ अल्फा का आंसर आ गया 21.74. So for this alpha 21.74, here this equation, this resultant will be vertical. Which is your second equation? Lecture. Which lecture do you have? Chemistry. Okay. Chemistry. मैम को एक मैसेज डाल दो कि we are joining in 5 minutes. So alpha equal to 21.74. CR, put the message.